Hello dear learners, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia. In today's video, I am going to discuss topic wise PYQs which is very important for UGC NET upcoming English exam. So in this video, I am going to discuss Geoffrey Chaucer, most important poet of the English literature to whom we study in 14th century. Okay, so all the questions I am gonna discuss which have been asked already in UGC NET exam. Let's practice with me. चलिए start करते हैं. We have first question. Which Canterbury pilgrim carries a brooch inscribed with the Latin word meaning love conquer all? इसमें पूछा है किस कैंटरबरी पिलग्रिम ने ब्रूच पहना हुआ था जिसपे लव कॉन्क्वर्स ऑल लिखा हुआ था. राइट, सो वी हैव ऑप्शंस ऑल, द प्रियोरीज, मॉन्क, वाइफ ऑफ बैथ एंड स्क्वायर. द आंसर इज द प्रियोरीज. द प्रियोरीज हु एक्चुअली कैरीज ब्रूच जिस पर लिखा था लव कॉन्क्वर्स ऑल. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज जॉफ्री चॉसर्स कंटेम्पररी? जॉफ्री चॉसर्स के टाइम पर और उनके साथ कंटेम्पररी कौन थे? चैटरटन, John Gower, Thomas Shadwell and John Gay. Right, so here I mentioned the timing period of them. Right, Thomas Chatterton, timing period 1752 to 1770. As we know कि Geoffrey Chaucer 14th century में थे, तो he is not one of them. John Gower, right, and the timing period is 1330 to 1408. Right, and Thomas Shadwell 1642 1692 and John Gay 1685 to 1732. So the answer is John Gower, right? And जिनका टाइमिंग पीरियड है 1330 to 1408. Okay, because he also belonged to the 14th century. As we know, the Geoffrey Chaucer, most important poet of 14th century, we studied them. So this is the answer, John Gower. Okay, guys, please note of it. These kind of question again and again examiner asked in UGC NET and other literature exams also. Okay, next question we have. From among the Canterbury pilgrims, which group would qualify as the upper class? कैंटरबरी पिलग्रिम्स में जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे वो कौन सा ग्रुप था? राइट, सो हियर इज 4 ऑप्शंस A, B, C and D and right answer the knight, square, the priories. These are qualify the upper class in the Canterbury Tale written by Geoffrey Chaucer in the year 1387. Okay, most important work. So in which we study about the Canterbury pilgrims and the conditions of 14th century in England. All the things you study with the help of this Canterbury Tales, okay, which was written in 1387. Next question we have. So this question, in the general prologue to the Canterbury Tales, which two characters are examples of deep Christian goodness? Deep क्रिश्चियन गुडनेस के एग्जाम्पल्स को लेके वो कौन से दो कैरेक्टर थे इन जनरल प्रोलॉग जो लिखा गया था द कैंटरबरी टेल्स का? राइट, सो द आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी मीन्स क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, यानी कि द पर्सन, राइट, एंड द प्लोमैन. These both two characters are the examples of deep Christian goodness. Okay, next question. It is decided that each Canterbury pilgrim would tell in all. मीन्स क्या डिसाइड किया गया था? कितनी स्टोरीज की मतलब हर कैंटरबरी पिलग्रिम को नरेट करना होगा. ओके, द राइट आंसर 4 स्टोरीज. राइट, बट इट वुड नॉट हैपन क्योंकि 4 स्टोरीज का पॉसिबल नहीं हुआ था. 2 स्टोरीज वर उन लोगों ने मतलब कि फाइनली डिसीजन लिया था, बट दे हैव डिसाइडेड टू नरेट 4 स्टोरीज. राइट, सो द आंसर इज 4 स्टोरीज. दे डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल 4 स्टोरीज, यानी कि 2 ऑन द गोइंग एंड 2 स्टोरीज व्हेन दे कमिंग बैक फ्रॉम देयर जर्नी. राइट, सो they just decided for the 4 stories. Okay, the answer is to this question. Next question we have. Which Chaucerian text parodies Dante's The Divine Comedy? Parodies का मतलब होता है हास्यपूर्ण व्यंग काव्य जो होता है, दैट इज कॉल्ड पैरोडीज. राइट, तो इसमें पूछा विच चॉसेरियन टेक्स्ट, कौन सा वो चौसर का टेक्स्ट है विच इज Dante's Divine Comedy. राइट, सो द आंसर इज द हाउस ऑफ फेम. Okay, the House of Fame was the text which is based on Dante's The Divine Comedy, which is an a parodies. Okay,
and these all are the work by Chaucerian, like Chaucer, right? The Canterbury Tales also written by Chaucer, the Book of Duchess, Legend of Good Women, and chronology also you will have to set, because this type of question also you guys can see in your exam. So whenever you just prepare the work and their year, so must remember that in chronology also you have to set of them, right? So guys, here is the statement: for gold in Psyche is cordial, therefore he loved gold in special. Relates to Chaucer's, किसके चॉसर्स के किस पिलग्रिम से ये रिलेटेड है? सो द आंसर इज डॉक्टर, राइट? Okay, doctor is the answer, because he also was the one of a pilgrim in the Canterbury Tales, right? Here is the question: the rhetorical pattern used by Chaucer in the prologue to Canterbury Tales. They just asked about the rhetorical pattern. कौन सा rhetorical pattern they used, right? Prologue लिखने के लिए Canterbury Tales का. The answer is 10 syllabic line, right? 10 syllabic line. Most important answer, guys. You guys can also find this question in the matching options. Okay, so do remember it. Next question: Chaucer's Parliament of Falls is in part. किसका पार्ट है जो Parliament of Falls चौसर का वर्क है? दिस इज द पार्ट ऑफ अ पजल, राइट? दिस इज द आंसर, पजल एंड डिबेट एंड बीस्ट फेबल, नॉट थ्रैंडोडी, राइट? दिस नॉट एसोसिएटेड विद दिस वर्क. So we have the three options: a puzzle, debate, and beast fable are the part of the work written by Chaucer, Parliament of Falls. Okay, remember option A is the answer, right? Next question: which poem by Chaucer was written on the death of Blanche, wife of John Gaunt? Okay, देखो wife of John Gaunt की जो नेम है उनका वो ब्लांची है, राइट? वाइफ ऑफ जॉन गोंट की जो वाइफ है ब्लांची है. इनकी डेथ पर चौसर ने कौन सी पोम लिखी थी, राइट? सो राइट आंसर वी हैव द बुक ऑफ डचेस. ओके, द बुक ऑफ डचेस. द बुक ऑफ डचेस इज द फर्स्ट ऑफ चौसर्स मेजर पोम्स में से फर्स्ट कंसिडर की जाती है, एंड दिस इज एन एलिगी रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांची. ब्लांची कौन है? डचेस ऑफ लैंकास्टर, जो कि लैंकास्टर की डचेस है. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एलेगरी. इसको एक ड्रीम एलेगरी में लिखा गया है, एंड इट कैरीज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम लॉर्डिस रोमन डी ला रोज, राइट? इसका इन्फ्लुएंस से लिया गया, राइट? एंड द पोएम बिगिन विद अ स्लीपलेस पोइट. एक पोइट होता है जो कि जिसको निंद्रा नहीं आती है, लाइक स्लीपलेस पोइट से स्टार्ट होती है. हु लेज इन अ बेड, जो लेटा है अपने बेड पर, एंड रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ रहा है, एंड ही रीड्स अ स्टोरी अबाउट साइक्स एंड एलिक्योन. उनकी बुक के बारे में पढ़ रहा है ये, साइक्स एंड एलिक्योन की बुक के बारे में, एंड वॉन्डर्ड अराउंड इन दी थॉट्स, और अपने 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 विचारों में खोया हुआ है, राइट? एंड सडनली द पोइट फॉल्स एस्लीप एंड ड्रीम अ वंडरफुल स्टोरी. तभी क्या होता है, पोइट को इतनी तेज नींद आ जाती है और वो क्या करता है, एक वंडरफुल ड्रीम में खो जाता है. एंड इन हिज ड्रीम, और उसको जो वो ड्रीम आता है, ही सीज अ मैन इन ब्लैक, और उसको एक आदमी दिखता है ब्लैक में, जो कौन होता है? एक नाइट होता है. हु टेल्स हिम अबाउट हिज कॉर्टशिप ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, जो अपनी कॉर्टशिप के बारे में बताता है उसको. पोएट को जो सपना देख रहा है, कौन बता रहा है? नाइट बता रहा है कि उसने एक ब्यूटीफुल लेडी देखी है, एंड ही इज मॉर्निंग फॉर हर डेथ. और वो क्या कर रहा है? उस ब्यूटीफुल लेडी की डेथ पर वो कर रहा है, शोक प्रकट कर रहा है, लाइक मौन कर रहा है, MOURN, मौन कर रहा है ऑन द डेथ ऑफ दैट ब्यूटीफुल लेडी. दिस ऑल आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दिस ड्रीम. कौन? जो कि वो पॉइंट देख रहा है, जिसने देखना शुरू किया है ड्रीम, ठीक है? एंड उसके बाद क्या होता है? व्हेन द पॉइंट अवेक्स, जब पॉइंट उठता है, ही डिसाइडेड दैट हिज ड्रीम शुड बी प्रिजर्व्ड इन राइम. वो क्या करता है? क्यों ना मैं अपने ड्रीम को राइम में प्रिजर्व कर दूं. एंड वो जो राइमिंग बनती है, द पोएम सर्व्स ट्विन पर्पस ऑफ एलिगी एंड एलेगरी. तो ये जो पोएम है द बुक ऑफ डचेस तभी बनती है जब वो पोइट होता है, फिर वो सोचता है क्यों ना मैं अपने इस ड्रीम को क्या कर दूं, राइम में कन्वर्ट कर दूं, राइट? सो अबाउट दिस पोएम की, ये जो पोएम है जब कंपोज की गई थी तो इसको 1300 लाइन्स में, इसको ऑक्टोस्लेबल की 1300 लाइन्स में इस पोएम को लिखा गया था. सो गाइज, दिस इंफॉर्मेशन आई थिंक वर्थ फॉर यू अबाउट द बुक ऑफ डचेस, राइट? एंड दिस वर्क रिटन अराउंड 1368 before the Canterbury Tales. Always remember
right? 1368. I think my pen, okay, let me change my pen. So this poem written in the year 1368, the Book of Duchess. और कैंटरबरी इसके बाद आ रही है, द कैंटरबरी टेल्स विच पब्लिश्ड इन 1386, मीन्स रिटन अराउंड 1386 to 95 ऐसा कंसिडर किया जाता है. एंड द हाउस ऑफ फेम, राइट, द हाउस ऑफ फेम ये कब आया? ये आया 1378 में, राइट. तो इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है. यू हैव टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी बिकॉज क्रोनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग these days. Examiner really concerned towards the chronology questions and the matching options. Okay, so you have to prepare your mind so that you guys can easily tick right option. कई बारी होता है we know about the answers, everything we know, but we are not the exact information about that particular work, right? अगर आपको पूरी इसकी स्टोरी पता है but you are unable to recognize कि what is the age of publication, so you guys cannot answer the question. Believe me, this is my personal experience because I have tried also, and this silly mistakes I lose my 4 or 6 marks, right? Just because of that silly mistakes कि मुझे सिर्फ उसका year नहीं आता, overall मुझे उस particular work का everything I knew about it, but at the time of examination I just forgot about the year, so that was lose my 2 marks of chronology questions, right? So please guys, you don't commit these mistakes again. That's the reason I'm just going to explain you. Okay, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैंटरबरी टेल्स इज ट्रू. अब इन्होंने स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन है, एक कौन सा क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. एंड लिसन गाइज, ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दीज क्वेश्चंस रिपीटेड मैनी टाइम. सो जस्ट कंसर्न कि कौन सी लाइंस आपसे पूछी गई हैं, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा लाइंस को नहीं चेंज करते, दे आर जस्ट रिपीट दैम अगैन एंड अगैन. सो यू हैव टू फोकस and you have to select keywords from the particular question so that you guys can easily take the right answer. These are the techniques then that you have to use to qualify or to score good marks in examination, because objective questions आपको answer करने हैं, you no need to explain there. So just use trick and just answer the questions. This is the brilliant way to qualify this exam. अगर आप honestly study करेंगे, सब कुछ अच्छे से study करेंगे, everything you will study deeply, nothing you will get at the end of time, because इतना wide हमारा syllabus है and you guys cannot sustain your mind everything. So that's the reason I'm just telling you, just go point to point answer and believe this channel guys. I'm just giving you all the right and authentic information from my channel. You just practice all the question which I'm just describing in my videos. Okay, it will really most beneficial when you were in your examination. You really remember what I said to you. Okay, so please, if you are just watching my video, first of all you will have to subscribe my channel so that I upload more practice sessions for you upcoming days. Okay, daily I will upload videos, but my condition is that you have to subscribe this channel so that I also grow and you guys also get a well from my video. Okay, so these are the options to this question. Let's read. The general prologue is appended to the Canterbury Tales. इन्होंने पूछा true statement, right? This is not the right. In all Chaucer tales, 30 tales in this work. No, this is also wrong, because 29 tales they are just not 29, actually 29 pilgrims, they were just gathered in the Tabard Inn. Okay, C option we have, the Canterbury Tales remained unfinished at the time of its author's death. Right, this is the right answer. I'm just telling you क्यों answer right है. ठीक है, let's read next also option. The wife of Bath, the clerk Sir Gavin and the Franklin are characters and telltale in this work. No, this is also wrong. So right answer, the Canterbury Tales remained unfinished at the time of its author's death. ये इनका unfinished work है. This is also the fact about the Canterbury Tales, because इनकी चौसर की डेथ हो जाती है जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था. एंड क्या है बेसिकली चौसर्स मोस्ट अक्लेम वर्क, इसको कंसिडर किया जाता है. द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नरेटेड बाय 29 पिलग्रिम्स, जो कि 29 पिलग्रिम्स के द्वारा सुनाई गई, नरेट की गई स्टोरीज इसके अंदर बताई है. ऑन दियर वे टू द श्राइन, कहाँ जा रहे थे? श्राइन द मार्टियर सेंट थॉमस पैकेट इन, जो कहाँ पर थी? कैंटरबरी में थी. ओके, ऑल द पिलग्रिम्स गैदर एट टाबर्ट इन में ये लोग इकट्ठे होते हैं, एंड साउथ वॉक में इन प्रेपरेशन फॉर दियर पिलग्रिमेज, और वहाँ पर वो अपनी तैयारियों में लगते हैं अपनी यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए. एंड हैरी बैली द होस्ट ऑफ द इन, ये क्वेश्चन भी आता है हैरी बैली, ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट नेम,
राइट, हैरी बेली। द होस्ट ऑफ द इन सजेस्ट अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, इसी ने सजेस्ट किया था स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट को, अकॉर्डिंग टू विच द पिलग्रिम विद द बेस्ट स्टोरी वुड बी अवॉर्डेड एन एलिगेंट डिनर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और इसने ये भी बोला था कि मतलब जो भी जिसकी भी स्टोरी बेस्ट कंसिडर की जाएगी उसको हम क्या देंगे, एक एलिगेंट डिनर देंगे। कब देंगे, एट द एंड ऑफ द ट्रिप, जब ट्रिप की एंड होगा। तो होस्ट जो था हिमसेल्फ बिकम्स द जज ऑफ द कॉन्टेस्ट, और जो होस्ट था जिनका नाम था हैरी बेली। दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड कि उनका नाम क्या था जिन्होंने कॉन्टेस्ट को सजेस्ट किया था कि स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट को एंड अवार्ड की, इसको अवार्ड दिया जाएगा, मीन्स अवार्ड किया जाएगा एन एलिगेंट डिनर के लिए, तो उनका नाम था हैरी बेली। ओके, एंड इसके अंदर आपको पता ही है कि आउट ऑफ द ओरिजिनल 120 स्टोरीज जो टोटल होती है, सिर्फ 24 टेल्स जो थी लिखी गई थी। एंड जो पिलग्रिम्स थे इसके कैंटरबरी टेल्स के, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑल दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम जेंट्री टू हम्बल, क्राफ्टमैन, मीन्स ऑल दी जितने भी सेक्शन सोसाइटी के हैं। वी कम टू नो अबाउट दिस वर्क ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, दैट्स द रीजन कि ये जो चौसर का वर्क था बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि इसने 14th सेंचुरी के इंग्लैंड ऑल दी कंडीशंस के बारे में बता दिया था गाइज। क्योंकि जितने भी पिलग्रिम्स आ रहे थे, दे आर जस्ट बिलोंग टू डिफरेंट द वे ऑफ लाइफ ऑफ देयर, द सोशल, किस टाइप के सोशल वेरिएशंस थे, किस टाइप का लोगों का टेस्ट था, एंड किस तरीके से ऐसे भी लोग थे जो हम्बल थे, एंड उस समय भी बहुत से सेल्फ सेंटर्ड मैन, मतलब किस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ जो वाइफ ऑफ बाथ थी उनका भी कैरेक्टर दिखाया गया था, मीन्स जिन्होंने 5 हस्बैंड्स, गाइज 5 हस्बैंड्स, शी हैज टू जस्ट चेंजेस इन हर लाइफ, बट शी इज नॉट सेटिस्फाइड येट। दिस कैरेक्टर ऑल्सो, वी गाइज कैन सी दैट एट दैट टाइम कि मतलब विमेन का ये मतलब इस तरीके का भी सोच था। एक प्रियोरिस भी थी जो मतलब कंप्लीटली डिवोटी थी टुवर्ड्स द गॉड, right? So kinds of varieties you will see in the characters just because of the help of pilgrims. Those are gathered Tabard Inn पे, Tabard Inn जो थी वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे, right? So this is the brief information I just gave you about the Canterbury Tales. Hope आपको पसंद आई हो, and पसंद क्या आई हो means आपके लिए worth हो exam point of view के लिए. Okay, let's go to next question. Arrange the following authors in the chronological order of their birth. See, this is the important question. This type of question you guys can see nowadays in UGC NET exams, okay? And you have to be careful regarding these type of question, okay? Because one option, बहुत ज़्यादा connected option अब ये लोग देते हैं, and सब major जो writers होते हैं उनके साथ एक minor writer को add कर देते हैं. Most of the students जिनका उनको year पता ही नहीं होता, and option ऐसे set करते हैं कि you guys can unable to answer quick right answer. So please be prepared about it, and कीवर्ड्स के साथ आपको आंसर्स करने, किसके साथ करने, कीवर्ड्स के साथ. ओके, सो लेट्स सी ऑस्कर वाइल्ड, विलियम लैंगलेन, जॉफ्री चॉसर, एंड वी हैव जॉन ड्रैडन एंड अलेक्जेंडर पोप, राइट. देखिए द आंसर इज ए, लाइक बी. देखो विलियम लैंगलेन जो कि कंटेम्प्रेरी है जॉफ्री चॉसर. मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड करते हैं कि जॉफ्री चॉसर बहुत पहले के हैं, 14th सेंचुरी के हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि लैंगलेन जो है चॉसर के कंटेम्प्रेरी, बट बिफोर चौसर से इनका बर्थ हो रहा है, राइट. सो आई विल मेंशन ऑल्सो इन लोगों की टाइमिंग पीरियड में मैं आपको मेंशन कर दूंगी नेक्स्ट माई वीडियो. टुडे आई डोंट हैव, and also I'm not in my mind, so I just telling you, but definitely I will tell you about the year of them. Let's see, विलियम लैंगलेन इनसे बड़े हैं चौसर से, इसके बाद चौसर आते हैं. अगर आपको बी और सी भी पता है, you guys can easily eliminate 2 option B and D. Now you have to decide about them. See, and we have first we have William Langland, then we have Geoffrey Chaucer, third number we have John Dryden, right? John Dryden जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्हें सभी लोग जानते हैं. इनका जो ईयर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1631. ओके, नेक्स्ट वी हैव अलेक्जेंडर पॉप. देखो अलेक्जेंडर पॉप को हम अगस्तन एज में पढ़ते हैं. इफ यू आर जस्ट लिटिल नो अबाउट द एजेस ऑफ द लिटरेचर, कि हमें किन को पहले पढ़ते हैं, किन को हम बाद में, रिवाइवल एज कब आता है, अगस्तन एज कब आता है, चौसेडियन एज कब आता है, तो भी हम इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो अलेक्जेंडर पॉप हैं ये अगस्तन एज के हैं. जॉन ड्रैडन जो इनसे पहले आते हैं 1631 में. देन ऑस्कर वाइल्ड आप सभी जानते हैं कि ये तो बहुत ही बाद में आए थे, तो आप गेस करके भी आंसर कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑप्शन. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. Which of the following statement is not correct? See, देखो
इसमें चौसर के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं. यू गाइज कैन इजिली आपके 3 जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी क्वेश्चन से कि चौसर के बारे में कौन से, यानी कि 3 सही होंगे, एक ही तो गलत है. लेट्स रीड. Chaucer used the rhyme royal a stanzic form in some of his major poems. एकदम एब्सोल्युटली राइट बात है कि चौसर जो थे उन्होंने राइम रॉयल को यूज किया था और स्टैंजिक फॉर्म को यूज किया था अपने मेजर पोम्स में. राइट, दिस इज राइट स्टेटमेंट और ऑप्शन. Second, we have Chaucer was the author of the Legends of Good Women. Right, this is also right because the Legend of Good Women भी इन्होंने ही लिखा था, जो कि इनका 1380s में आया था वर्क. कब आया था? 1380s में ये इनका वर्क आ रहा है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन. राइट, एंड नेक्स्ट वी हैव चॉसर रोट इन इंग्लिश व्हेन द कोर्ट पोएट्री ऑफ हिज डे वाज रिटन इन एंग्लो नॉर्मल एंड लेटिन. ये चॉसर जो थे इन्होंने इंग्लिश में उस समय लिखा था जो जितनी भी पोएट्रीज थी जब किस में चल रही थी, एंग्लो नॉर्मल एंड लेटिन में. अभी मैं आपको इसका एक स्टेटमेंट भी बताती हूँ जो कि बहुत ही फेमस था जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा था. सी गाइज, मैं 14th सेंचुरी में क्या होता था, जो इंग्लिश थी, राइट, इंग्लिश को लैंग्वेज कंसीडर नहीं करते थे रॉयल लैंग्वेज एज ए रॉयल लैंग्वेज. जो चौसर की एज थी, इंग्लिश वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर. राइट, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल इजीली इंग्लिश बोल लेते थे, उसको हाई कल्चर की इंग्लिश नहीं समझा जाता था. तो फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ पावर. उस समय फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस था. स्पोकन बाय रॉयल्टी, एरिस्टोक्रेट जो थे, हाई पावर जो ऑफिशियल्स थे, सभी लोग फ्रेंच यूज़ करते थे. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ चॉसर, हाउएवर, चॉसर ने क्या किया, ही डेवलप्ड ऑफ इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज. इन्होंने एज अ लिटरेचर को स्टडी करने के लिए इन्होंने जो लैंग्वेज अपनाई इंग्लिश को, बाय डिसाइडिंग टू राइट इन इंग्लिश. चौसर ने क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को डिसाइड किया लिखने के लिए, बिकॉज चौसर तो चाहते थे, देखिए जितने भी जो कॉमन पीपल होते हैं, अगर वो तुम्हारे वर्क को पढ़ते हैं देन दे आर जस्ट डिसाइडेड कि आपने वर्क अच्छा लिखा है, अदरवाइज यू राइट रॉन्ग. ओके, तो इन्होंने उसी लैंग्वेज को चूज किया. एंड एज ही स्टार्टेड टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो ही एडिड न्यू वर्ड्स. ये बात सच है कि इन्होंने बहुत से न्यू वर्ड्स लिए थे फ्रॉम रोमांस लैंग्वेजेस, लेटिन, फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश. इन्होंने लैंग्वेज लेके इन्होंने इंग्लिश को इतना अच्छा बना देता, मतलब इनरिच कर दिया था इंग्लिश को, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. राइट, इसको एक लैंग्वेज बना दिया था जस्ट बिकॉज ही बोरो सो मैनी वर्ड्स फ्रॉम दी अदर लैंग्वेजेस. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लैटिन से, फ्रेंच से, इटालियन से, स्पेनिश से, इन्होंने काफ़ी सारी मतलब वर्ड्स लिए. और अपनी ये जो इंग्लिश थी जिसे लोग अच्छा कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, दे जस्ट डोंट यूज in high society, they decided to use in high society just because of the Chaucer's writing in English language. Right, this was the reason, I'm just telling you. Okay, and जो चौसर का जो एक आइडिया आया था कि फ्रेंच लिटरेचर, एंड इन्होंने क्या कर दिया, चौसर टुक द आइडिया ऑफ राइम फ्रॉम. इन्होंने जो राइम्स का आइडिया था कहाँ से लिया था, फ्रेंच से लिया था, ऑफकोर्स फ्रेंच से लिया था. काफ़ी लोग आप जानते हैं कि चौसर टुक द आइडिया ऑफ राइम्स फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश. इन्होंने इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे जो इंग्लिश थी इसने अपनी वैल्यू पकड़ ली थी. ओके, सो दीज 3 ऑप्शंस वर राइट. एंड डी, चौसर रॉट द बुक नेम्ड द गवर्नर. नो, दिस बुक इज नॉट रिटन बाय चौसर. राइट, एनी अदर राइटर रॉट दिस बुक. राइट, see guys, this is also very important question. See, the wife of Bath's philosophy of marriage shows that she, अब आपको इसमें बताना है कि जो वाइफ ऑफ बाथ की जो एक फिलॉसफी थी उनके माइंड में मैरिजेस को लेके, तो क्या शो करती है वो. देयर आर द ऑप्शंस. इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विद कीन अवेयरनेस ऑफ हर ओन राइट्स. राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन. वो क्या चाहती है, उनकी जो फिलॉसफी थी मैरिज को लेके वो इसलिए ऐसी थी कि इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. वो चाहती थी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो विद कीन अवेयरनेस, जिसके अंदर एक कीन अवेयरनेस हो ऑफ हर ओन राइट्स, की मतलब अपने राइट्स को लेकर उसके अंदर कीन अवेयरनेस का होना, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है. सी, just because of this statement you guys can easily understand that in the 14th century लोगों के अंदर मन में ये चीज़ आने लगी थी their own awareness के लिए, right, कि उनको क्या क्या उनके rights होने चाहिए, उनके लिए क्या क्या गलत है, क्या सही है. I think these all the knowledge और awareness they guys wanted to in their character.
सो दिस शो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, सो यू गाइज, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो कैंटरबरी टेल्स है रिप्रेजेंट करते हैं 14th सेंचुरी के एक पूरे सोसाइटी सिस्टम को, कि किस तरीके से डिफरेंसेस हैं उसके अंदर एंड काइंड्स ऑफ थिंग्स. ओके, वी कम टू नो अबाउट दिस वर्क. दिस इज द रीजन कि चौसर का ये वर्क बहुत ही फेमस हुआ एंड आज यूजीसी नेट में काफ़ी क्वेश्चंस उनसे आते हैं. अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहे थे, 1-2 क्वेश्चन तो वैसे भी आते हैं, बट यू डोंट थिंक कि वो लोग दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर जो होते हैं 1 या 2 पेपर्स में क्या करते हैं, एकदम से उस टॉपिक को हटा देते हैं एंड बहुत ही क्विकली फिर से ये उसी टॉपिक को उठा लेते हैं. एंड आप पक्का देखेंगे अपकमिंग एग्जाम में चौसर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और मे बी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? So guys, this is the last question of today's video of mine. Which tale in the Canterbury Tales uses the tradition of the Beast Fable? कि कौन सी वो कहानी थी जिसने Beast Fable को यूज़ किया था. देखिए, हम सभी ने अपने मास्टर्स में द नन्स प्रिस्ट टेल बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें चॉन्टिक्लियर था, कितना अच्छा रोल था उनका, एंड उसके अंदर एक फॉक्स का रोल भी था. ओके, सो दिस इज मोस्ट फेमस स्टोरी एंड दिस इज द फीस्ट फेबल. इसी का तो सब टाइटल है, द फीस्ट फेबल ऑल्सो द नन्स प्रिस्ट टेल का, जो हमने मास्टर्स में अपने पढ़ी थी. ओके, सो गाइज, होप यू लाइक वट एवर आई एक्सप्लेन यू. जितना मैं कर सकती थी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इन दी होप कि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले. प्लीज़ गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो मुझे भी अच्छा लगे कि वट एवर आई डिड इट वर्थ फॉर यू ऑल aspirants of UGC NET English. My target to reach literature among the all the students. Then you no need to paid courses. Okay, आपको किसी भी पेड कोर्सेज में जाने की ज़रूरत नहीं है. सेल्फ स्टडी से और हमारी वीडियोस के थ्रू आपको बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं. होप आप उसको हेल्प से अच्छे से पढ़ाई करते होंगे. टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, राइट?